तो आज के टॉपिक पे हमको पढ़ना है माइकोटा। माइकोटा मतलब फंजाई। तो फंजाई एक्चुअली दे possess which type of organism? फंजाई possess the यूकैरियोटिक, कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? यूकैरियोटिक, ओके। देन इट possess the saprophytic, mainly they possess the saprophytic organism. Eukaryotic and the saprophytic organism is including in the fungi. हो जाओ बेटा सब लोग ऑनलाइन, चलो फटाफट, अभी भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं हैं। ओके बेटा, सो नाउ अब हम स्टार्ट कर देते बेटा। ओके, सो फंजाई, माइकोटा, that is known as the fungi, and the fungi including the eukaryotic organism and the saprophytic organism. So first of all, the study of fungi is known as the mycology. What is mycology? Mycology means the study of fungi is known as the mycology. The second point is, who is the father of mycology? So the father of mycology is Micheli. Micheli is the father of mycology. Then who is the father of modern mycology? Okay, the father of modern mycology. So the father of modern mycology known as the D. Barry. D. Barry is the father of modern mycology. And next is the, who is the father of Indian mycology? Father of Indian mycology is known as the Mundkar. Mundkar and Butler. Mundkar and the Butler. And the name of fungi. Fungi ऐसा नाम किसने दिया? तो गास्पार्ड बाउहेन. बाउहेन. Okay, means beta actually who is the father of mycology? So in general the father of mycology is Michelis. Who is the modern mycology father? So D. Barry. Indian mycology father is Mundkar and the Butler. And the who gave the name of fungi? Gaspard Bauhin gave the name of the fungi. आ गए बेटा सब लोग? ओके, तानिया आ गई, यशवी भी आ गई, धैर्य आ गया, ओके, साक्षी भी है। चलिए बेटा फटाफट सब लोग ऑनलाइन हो गए हैं, तो मैं वापस यही चीज को एक बार फिर से बोल देता हूँ बेटा। माइकोटा मीन्स फंजाई, and always fungi including which type of organism? Eukaryotic and the saprophytic organism present in the mycota. Actually, who is the study of mycology is known as the study of fungi is known as the mycology. Who is the father of mycology? Michelis is the father of mycology. Second, who is the father of modern mycology? D. Barry is the father of modern mycology. Who is the Indian mycology, father of Indian mycology? Mundkar and Butler. And last, who gave the name fungi? Gaspard Bauhin gave the name fungi. Now, in general introduction of the fungi, अब जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इन फंजाई के characteristics and all things. So fungi actually it is classified into the different unique kingdom and it is known as the fungi. Okay, it is classified into unique kingdom, okay, which includes all saprophytic and eukaryotic organism. Means fungi actually classified into the different kingdom. आपने देखा मोनेरा, हमने देखा मोनेरा include all bacteria.
दूसरा हमने देखा प्रोटिस्टा, उसमें डायनोफ्लेजेलेट्स थे, डायटम्स था, यूग्लिनॉइड्स एंड म्यूकर देखा हमने, स्लाइम मोल्ड देखा। ओके, अब फंजाई है दैट इज क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट किंगडम एंड इट इज नोन एज द सैप्रोफाइटिक एंड द यूकैरियोटिक। नाउ ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द बेटा हीर आपका क्वेश्चन है कौन से टाइम पे एग्जाम होगा। बेटा एग्जाम का टाइम आपको मैंने ऑलरेडी मटेरियल में दे दिया है, जो भी मैंने आपको शेड्यूल भेजा है इसी टाइम पे आपका एग्जाम होगा, 11 बजे ही एग्जाम होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली द फंजाई दे shows the large diversity in their morphological and their habitat. The fungi shows large diversity and morphology and their habitat. आप अलग अलग फंजाई देखो, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और उसके हैबिटेट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नाउ when your braid developed, when your braid developed the mold and your orange rot, okay, that is because of fungi। मीन्स बेटा यहां क्या बोल रहे हैं कि आपके ब्रेड, अगर आप ब्रेड को 2-3 दिन रख दो तो ऊपर मोल्ड आ जाता है, आप ऑरेंज को 1-2 दिन बाहर रखो तो ऊपर ब्लैक डॉट हो जाता है या फिर व्हाइट हो जाता है, तो दैट इज ऑल ड्यू टू द फंजाई। वो सारी चीजें कैसे होती है, तो दैट इज ड्यू टू द फंजाई। ओके, देन ऑल्सो द फंजाई हम जो खाते हैं दैट इज मशरूम के mushroom and the toadstool are also the eatable fungi। वो भी क्या है, fungi ही है and it is the eatable fungi। क्लियर बेटा। सो द जनरल इंट्रोडक्शन में देखें तो fungi are classified into the unique kingdom that is saprophytic and eukaryotic। Fungi possess the diversity in their morphology and habitat. When your braid develop the mold and when your orange get rotted, this is all due to the fungi। Also, they अब देखो कई बार मशरूम और टेट्सोल वो खाते भी है लोग, तो वो भी क्या है, फंजाई है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखे बेटा तो यीस्ट की बात करें तो यीस्ट a unicellular fungi used to produce the bread and beer। जो यूनिसेलुलर फंजाई है, ओके, कौन सी, यीस्ट। और यीस्ट किसके लिए यूज हो रहा है, तो यीस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस द ब्रेड एंड द बियर। ओके, देन ऑल्सो the multicellular fungi that is Penicillium notatum used to produce antibiotic like penicillin। This penicillin antibiotic is obtained from the Penicillium notatum fungi। Also some of the fungi may cause, some fungi may cause the disease and plant and animals। Okay, for an example like the rust on wheat। आप अगर कई बार देखो तो व्हीट आप अगर टच करो तो आपको रफ लगेंगे
और ऊपर व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू द फंजाई पक्सिनिया, दैट इज ड्यू टू द फंजाई पक्सिनिया। ओके, तो पक्सिनिया की वजह से क्या हो जाता है, रूट रस्ट ऑन द वीट। तो ये सारी चीजें क्या होगी बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फंजाई। यहां तक बेटा कोई डाउट है तो आप बताओ। सर कैन यू एक्सप्लेन ऑरेंज रॉट, बताता हूँ बेटा फिर से एक बार। ओके, हाँ बेटा ऑरेंज रॉट में आपको दिखा देता हूँ। ऑरेंज रॉट, ऑरेंज रॉट का मतलब क्या है बेटा, कि जो ऑरेंज अगर आप 3-4 दिन बाहर रख दो तो ऊपर व्हाइट व्हाइट थ्रेड जैसा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वहां ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ऑरेंज रॉट। क्लियर, आई पता चल गया बेटा ऑरेंज रॉट क्या है। सर व्हाट इज टोडस्टॉल, टोडस्टॉल मींस बिलाडिनो टोप, नहीं कहता आपने बिलाडिनो टोप, दैट इज टोडस्टॉल। एंड आयुषी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पक्सिनिया, बेटा पक्सिनिया इट्स अ काइंड ऑफ फंजाई, एक टाइप का फंजाई है। ओके क्लियर बेटा, यहां तक सबको पता चल गया। हैबिटेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, habitat and structure of fungi. So beta where the fungi is found, तो fungi is found और fungi is the cosmopolitan, fungi is the cosmopolitan, कॉस्मोपॉलिटियन। अब आपको क्वेश्चन होगा कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या है। कॉस्मोपॉलिटियन मीन्स एवरीवेयर, एवरीवेयर। ओके, द फंजाई इज ग्रो, फंजाई इज ग्रो इन द वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। तो फंजाई इज ग्रो एंड moist, warm and humid place। तो वो कहां ग्रो होगा बेटा, जहां मॉइस्ट होंगे, वार्म प्लेस होगा, ओके, एंड द ह्यूमिड एनवायरमेंट होगा, वेयर द फंजाई इज ग्रो। नाउ उसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा, तो स्ट्रक्चरली द फंजाई एक्सेप्ट यूनिसेल्यूलर fungi, which one, yeast, except the unicellular fungi, yeast, all fungi shows the long, slender, filamentous structure known as hypha and in plural known as hyphae। याद रखना बेटा कि अब मैं यहां ड्रॉ भी करता हूं कि फंजाई possess the long, thin, slender and the filament like structure, and it is a single structure is known as the hypha, the single structure is known as the hypha। ओके, मैं यहां दूसरा भी एक बना देता हूं। So that single structure is known as the hypha। okay? ऐसे बहुत सारे होंगे। This single is known as the hypha। अगर दोनों को प्लूरल में बोले तो that is known as the hyphae। Now when this hyphae get from the network structure, it is known as the mycelium। When it formed network of hyphae known as माइसेलियम। देखो बेटा माइसेलियम में क्या होगा, तो
ऐसे बहुत सारे अगर हाइफा कंबाइन हो जाए, एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना दे, ओके तो ये क्या हो गया बेटा, ग्रुप ऑफ फंजाई, ग्रुप ऑफ हाइफे, इट इज नोन एज द माइसेलियम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, माइसेलियम। क्लियर। अ सिंगल हाइफे, सिंगल इज नोन एज हाइफा, अगर बहुत सारे हैं हाइफे और अगर वो नेटवर्क बना रहा है दैट इज नोन एज द माइसेलियम एंड दिस इज नोन एज द राइजोइड्स। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं राइजोइड्स। This part is known as the sporangiophore. Sporangiophore. This part is known as the columella. This portion is known as the apophysis, and this is known as the sporangia. एंड अंदर जो है ये दैट इज नोन एज द स्पोर। ओके सो बेटा हर एक के नाम मैंने दिए। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज राइजोइड्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर, फिर ये नेक जो है दैट इज एपोफाइसिस, फिर ये स्वॉलन पार्ट है दैट इज नोन एज कॉल्यूमेला, और उसके ऊपर क्या होगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, या फिर आप स्पोरेंजियम भी लिख सकते हो, स्पोरेंजियम, और उसके अंदर क्या होगा स्पोर। क्लियर बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। नाउ समटाइम द फंजाई, समटाइम फंजाई may be continuous tube like structure with a multi nucleus, okay, known as aseptate fungi, and sometime some fungi has the septa known as septate fungi। अब ये वापस क्या आया, तो सेप्टेट एंड दी एसेप्टेट। तो बेटा देखो यहां पर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं कि दिस इज द फंजाई, राइट, ये एक फंजाई है, ये दूसरी फंजाई है, राइट। इफ दे पॉजेस दी क्रॉस वॉल, अगर क्रॉस वॉल है और फिर उसमें न्यूक्लियस है, so this is known as the septate with cross wall। अगर क्रॉस वॉल नहीं है और डायरेक्टली न्यूक्लियस है then it is known as aseptate, okay, it is known as the aseptate। अगर aseptate है तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं, कोइनोसाइटिक न्यूक्लियस, मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियस। कॉइनो, एक ही में मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यहां पर अलग अलग न्यूक्लियस होंगे। क्लियर बेटा। तो हो गया सेप्टेट और दी एसेप्टेट की बात हो गई। नाउ द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड and it is also known as the fungus
It is also known as the fungus cellulose beta. So the cell wall of the fungi is made up of the chitin polysaccharide, or it is known as the fungus cellulose. And one more point, the nutritional. So mode of nutrition of the fungi, they all are saprophytic. Saprophytic means they getting the nutrition from dead bodies और द डेड मटेरियल. सो डेड मटेरियल में से वो न्यूट्रिशनल लेता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक. नाउ द फंजाई, इट मे बी समटाइम हम बोल सकते हैं कि फंजाई आर पैरासिटिक ऑल्सो. सम फंजाई आर पैरासिटिक ऑल्सो. सम फंजाई आर पैरासिटिक. एंड यहां पर बेटा मैं लिखता हूं सम आर mutually, some fungi are possess the mutual relationship with algae and known as lichen. क्या बोलते हैं बेटा उसको? लाइकेन. मीन्स कई सारे फंजाई ऐसे भी होंगे जो म्यूचुअली आल्गी के साथ रहेंगे. किसके साथ? आल्गी के साथ रहेंगे, और उसको बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं. देन सम फंजाई फाउंड इन अ रूट ऑफ पाइनस प्लांट. पाइनस मतलब जिम्नोस्पर्म है बेटा ये. पाइनस प्लांट एंड इट इज नोन एज दी माइकोराइजा. इट इज नोन एज दी माइकोराइजा. तो बेटा देखो वापस मैं बोलता हूं कि फंजाई एक्चुअली वो कॉस्मोपॉलिटन है. कॉस्मोपॉलिटन मींस दे आर फाउंड एवरीवेयर. कहां पर ग्रो होता है? तो दे आर ग्रो इन द मॉइस्ट, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. एक्सेप्ट यूनिसेलुलर फंजाई. ईस्ट को हम निकाल दें तो बाकी सब फंजाई लॉन्ग, स्लेंडर, थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हाइफा. अगर उसको प्लूरल में बोलना है हाइफे. और अगर वो नेटवर्क में है तो दैट इज नोन एज माइसेलियम. बहुत सारे हाइफा ऐसे भी हैं जिसमें क्रॉस वॉल होंगे तो उसको बोलते हैं सेप्टेट. क्रॉस वॉल नहीं है तो उसको बोलते हैं ए सेप्टेट. क्या बोलते हैं? ए सेप्टेट. और उसको मल्टीपल न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या फिर कोइनोसाइटिक न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं. फंजाई जो है उसका सेल वॉल देखो तो काइटिन से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? फंगस सेलुलोज. न्यूट्रिशनल तो सैप्रोफाइटिक में से सैप्रोफाइट है, मींस डेड ऑर्गेनिज्म में से फूड लेता है. बहुत सारे ऐसे भी है जो पैरासिटिक है. पैरासिटिक है तो वो लिविंग में से फूड लेंगे. बहुत सारे ऐसे भी है जो म्यूचुअली दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं. जैसे आल्गी के साथ जो रहता है उसको लाइकेन बोलते हैं. पाइनस प्लांट के साथ जो रहता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं. ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट. अब आपको ऐसा क्वेश्चन भी होगा कि आल्गी और फंजाई, उसको हम लाइकेन बोलते हैं बेटा. देखो यहां पर मैं लिखता हूं कि आल्गी प्लस फंजाई तो क्या हो गया बेटा? लाइकेन. अब ये म्यूचुअली क्यों है? क्योंकि फंजाई आल्गी को क्या प्रोवाइड करेगा? तो फंजाई आल्गी को मिनरल प्रोवाइड करेंगे. क्या प्रोवाइड करेंगे? मिनरल्स. और आल्गी फंजाई को क्या प्रोवाइड करेगी? तो फूड प्रोवाइड करेगी. मीन्स फंजाई आल्गी को मिनरल्स, वाटर सब देगा. आल्गी फूड बनाएंगे और वो फूड कौन यूज करेगा? फंजाई. तो ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट हो गए. वैसे ही माइकोराइजा है वो पाइनस प्लांट को क्या देता है? तो फॉस्फोरस देता है. क्या देता है? फॉस्फोरस. और पाइनस प्लांट माइकोराइजा को क्या देता है? तो वो फूड देगा. तो ये दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो गया दोनों के बीच में. सो दिस इज म्यूचुअल बेनिफिशियल के लिए भी आल्गी होते हैं. क्लियर बेटा? यहां तक अगर पता चल गया है तो हम आगे जाते हैं रिप्रोडक्शन. तो फंजाई shows the reproduction by 3 way: fragmentation,
asexual reproduction and sexual reproduction. The first is the fragmentation. What is fragmentation? So suppose सोचो कि यहां पर मेरे मोबाइल के ऊपर कोई फंजाई है और मैं उसको स्प्रेड कर दूं, ऐसे सब अलग अलग कर दूं, मीन्स फ्रेगमेंटाइज कर दिया, तो ईच फ्रेगमेंट इज नाउ डेवलप एज अ न्यू फंजाई. हर एक जो फ्रेगमेंट होगा वो नई फंजाई की तरह एक्ट करेगा. तो फ्रेगमेंटेशन के मीन्स बाय एनी फिजिकल मीन्स, फिजिकल वे, इफ we divide the fungus mycelium, then each hypha grow as a new organism, एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. क्लियर बेटा? कि अगर कोई एक यहां पर माइसेलियम है और मैंने उसको फिजिकली स्प्रेड कर दिया, तो हर एक हाइफे जो अलग अलग हो गया, सबके सब नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. सर हाउ दिस लाइकेन इज हार्मफुल एज वेल एज हेल्पफुल टू अस. बेटा यही चैप्टर के लास्ट टॉपिक में लाइकेन में कराऊंगा. ओके सर, डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. Actually beta, fragmentation and regeneration, it is similar. It is 99.9% it is similar beta. Clear? Now दूसरे पॉइंट पे जाते हैं. तो दूसरा पॉइंट है that is asexual reproduction. और जो asexual reproduction होगा वो कैसे होगा? So asexual reproduction by the स्पोर फॉर्मेशन. क्या बनाएंगे वो? स्पोर फॉर्मेशन. एंड द काइंड ऑफ स्पोर आर, द एग्जाम्पल ऑफ द स्पोर इज कॉनिडियल स्पोर. ओके, सेकेंड वन इज द जूस्पोर. जूस्पोर आर द कॉनिडियल स्पोर इज द नॉन मोटाइल. And second one is the zoospore, and the zoospore are the motile spore. अब ये भी क्वेश्चन होगा. अब देखो बेटा, यहां आपने कॉनिडियल वर्ड नहीं सुना होगा, जूस्पोर वर्ड नहीं सुना होगा, बट स्पोर तो पता है ना आपको. स्पोर यानी जो फंगस. सपोज ये मैंने एक फंजाई ड्रॉ किया है, तो ये फंजाई में से आगे जो मैंने ये बनाया था स्पोरेंजियम, और उसके अंदर मैंने स्पोर बनाए थे, तो यहां से जो निकलेंगे, रिलीज होके जो निकलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर. क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर. तो ये स्पोर ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्लैजेला होगा, तो वो मोबाइल है, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको बोलते हैं जूस्पोर, मोटाइल स्पोर. और बहुत सारे स्पोर ऐसे भी है जो मोटाइल नहीं है, उसको बोलते हैं कॉनिडियल स्पोर. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट है दैट इज द थर्ड, सेक्सुअल reproduction. Sexual reproduction, it's a fusion of two gametes. दो गैमेट फ्यूज होंगे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. एंड इसमें कौन कौन से स्पोर होंगे? तो एग्जांपल इज ओस्पोर. ओस्पोर को हम जाइगोस्पोर भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? जाइगोस्पोर. दूसरा है एस्कोस्पोर, और तीसरा है बैसिडियोस्पोर. ये आप सबको आगे जब हम टाइप्स ऑफ फंजाई करेंगे तब आपको पता चलेगा एस्कोस्पोर क्या है और बैसिडियोस्पोर क्या है. ओके, एक्चुअली फंजाई के टाइप है एस्कोमाइसेटिस एंड बैसिडियोमाइसेटिस. एस्कोमाइसेटिस में जो स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं एस्कोस्पोर. बैसिडियोमाइसेटिस में जो स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं बैसिडियोस्पोर. क्लियर बेटा? तो ये टाइप है, और ये सारे कैसे हैं? तो दे आर दी सेक्सुअल स्पोर. नाउ इन सेक्सुअल स्पोर देयर आर 3 स्टेप. वन इज दी प्लाज्मोगेमी, सेकेंड वन इज दी कैरियोगेमी, and third one is the
मियोसिस। तो देखो बेटा इसमें कैसा होगा कि सोचो ये एक फंगस का हाइफे है, ये एक फंगस का हाइफे है, ओके, और ये उसका स्पोरेंजियोस्पोर है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों कैसे है, हैप्लॉइड। अब फर्स्ट स्टेप, पहले एक सेकंड बेटा, ये दो हाइफे है राइट। अब ये दो हाइफे में फर्स्ट स्टेप होगा प्लाज्मोगेमी। क्या होगा बेटा, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, सो इन प्लाज्मोगेमी इट इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी मीन्स इट इज, प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा। अब जब साइटोप्लाज्मा फ्यूज होगा बेटा तो यहां क्या होगा, अब देखो यहां पर दो हाइफे ऐसे हैं, ये दोनों अब फ्यूज हो जाएंगे, हो गए फ्यूज्ड। अब जो दोनों फ्यूज्ड हो गए तो ये क्या हो गया, N प्लस N, मीन्स दोनों में अभी तक न्यूक्लियस, यहां भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मैं आपको रेड पेन से बताता हूं, यहां भी न्यूक्लियस है, यहां भी न्यूक्लियस है, अभी भी इसका भी न्यूक्लियस है और इसका भी, दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है। तो ये स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियन स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, डाई कैरियन। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, डाई का मतलब टू, तो दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं, दो न्यूक्लियस स्टेज है इसलिए बोलते हैं डाई कैरियन। अब क्या होगा आगे, तो सेकंड स्टेप है दैट इज कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी का मतलब क्या है, तो कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो अब बेटा यहां क्या होगा, यहां ऐसे हो जाएगा, ये हाइफे तो है ही दोनों, पर नाउ दोनों का न्यूक्लियस अब फ्यूज्ड हो जाएगा और ये एक बन जाएगा और यहां आ जाएगा एक ही न्यूक्लियस, और वो कैसा होगा, 2n होगा। यहां nn था, यहां nn था, यहां भी nn था, पर यहां क्या हो गया 2n, मीन्स क्योंकि अब न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो गया। और द थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मियोसिस। थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, मियोसिस। मियोसिस इन थर्ड स्टेप इट इज मियोसिस। और मियोसिस में क्या होगा, सो इट फॉर्म्ड द फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनाएंगे बेटा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। कैसे फ्रूटिंग बॉडी बनेगा वो देखते हैं, कि ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे, ऐसे हमने देखा। अब ये दोनों का यहां फ्यूजन भी हो गया और दोनों का न्यूक्लियस भी था, बट यहां से अभी क्या होगा बेटा, यहां से एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। फ्रूटिंग बॉडी मतलब ऐसा एक डेवलपमेंट होगा, और ये न्यूक्लियस कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि इट फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी एंड प्रोड्यूस the spore by meiosis। अब हम सबको पता है मियोसिस में क्या होता है बेटा, जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। जो लोग भी चैप्टर नंबर 10 में प्रेजेंट नहीं थे बेटा, उन लोगों को बोलता हूं कि मियोसिस में जो 2n होता है वो डिवाइड होके क्या हो जाता है, n और nn मीन्स 4 स्पोर बनते हैं। मीन्स जो डिप्लॉयड सेल होता है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, और सारे सेल कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। सो इट विल प्रोड्यूस द स्पोर। और कैसे स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर। सो बेटा यहां पर ध्यान से देखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं, ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। कैसे होता है, प्लाज्मोगेमी मीन्स 2 हाइफे होगा, पहले उसका साइटोप्लाज्मा फ्यूज्ड होगा,
उस टाइम पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। फिर होगा कैरियोगेमी, मींस न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो वो डाइकैरियन स्टेज हो जाएगा, ओके सॉरी डिप्लॉयड हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसका मियोसिस होगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा और मियोसिस होगा। तो मियोसिस से जो डिप्लॉयड है वो 4 हैप्लॉयड स्पोर में डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इन मोस्ट algae, most fungi के डायरेक्ट कैरियोगेमी टेक्स प्लेस। अब देखो मोस्ट ऑफ द फंजाई में क्या होगा, ये स्टेप होगा ही नहीं, डायरेक्टली फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगेमी नहीं होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड बन जाएगा। बट इन एस्कोमाइसेटिस एंड बैसिडियोमाइसेटिस, एस्को एंड बैसिडियोमाइसेटिस में जो होगा उसमें डाइकैरियन स्टेज इज फाउंड। उसमें बेटा डाइकैरियन स्टेज होगा, मीन्स उसमें ये स्टेज होगा, मीन्स प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा और फिर मियोसिस होगा। बहुत सारे डाउट है, मैं वो देख लेता हूं, फिर बाद में मैं आपको वापस समझा देता हूं बेटा, ओके। होमोथैलिज्म एंड हेट्रोथैलिज्म। होमोथैलिज्म एंड हेट्रोथैलिज्म। होमोथैलिज्म मतलब when the two genetically similar fungi fuse together, this type of the fertilization is known as the homothalism. When two genetically similar fungi fuse together, known as होमोथैलिज्म। मीन्स अगर कोई जेनेटिकली सिमिलर फंजाई है और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, होमोथैलिज्म। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हेट्रोथैलिज्म, मीन्स इफ टू genetically different fungi fuse together, known as, क्या बोलते हैं बेटा उसको, known as heterothallism। clear? what is homothallism and the heterothallism? होमोथैलिज्म का मतलब क्या है बेटा, when the two similar fungi fuse together, that is called homothallism. when the two genetically different fungi fuse together, it is known as the heterothallism. now the types of fungi, so अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, types of fungi. so there are mainly 4 types of fungi. First is the Phycomycetes. Second one is the Ascomycetes. Third one is Basidiomycetes. And fourth one is the Deuteromycetes. Clear बेटा? There are 4 different types of the fungi. अब इसके भी डिफरेंट नेम है। फाइकोमाइसेटिस को हम लोअर फंजाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोअर फंजाई, बिकॉज इट इज वेरी प्रिमिटिव और बहुत ही मीन्स इनिशियल स्टेज में होगा, डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में होगा, इसलिए उसको लोअर फंजाई बोलते हैं।
Ascomycetes is known as the sac fungi. Basidiomycetes is known as the club fungi, और Deuteromycetes is known as the imperfect fungi. क्लियर बेटा? तो टाइप्स ऑफ फंजाई फाइकोमाइसेटेस, एस्कोमाइसेटेस, बेसिडियोमाइसेटेस एंड ड्यूट्रोमाइसेटेस. फाइकोमाइसेटेस मीन्स लोअर फंजाई, एस्को मीन्स सेक फंजाई, बेसिडियो मीन्स क्लब फंजाई एंड लास्ट ड्यूट्रोमाइसेटेस मीन्स इम्परफेक्ट फंजाई. क्लियर बेटा? यहां तक पता चल गया. तो आज हम यहीं तक आपको करते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ द टाइप्स ऑफ फंजाई. टाइप्स ऑफ फंजाई को हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो.